Screen. ओके, सो कल हमने किया था वो प्रोग्राम, कहाँ पे है अभी इसको दिया, ये हमने कल किया था। ठीक है, इसी के ऊपर हम एक्सप्लेनेशन दे रहा था, फिर वी टाइम्ड आउट, सो वी एक्सप्लेन इट टुडे अगेन। एंड कहीं पे वो था, वो क्या बोलते हैं उसको, वेट अ सेकंड, वी नीड टू हैव दिस पेन, pointer, and let me make it a little bigger. Okay, is screen visible properly? Yes, sir. So yesterday we were talking about this thing that we have. We start with the title. We know learning arrays using in 8986 microprocessor. We have the dot model small. That means if we have the memory, and in that memory we have 4 segments, right? And we can have in the memory one code segment, one data segment, one extra segment, and one stack segment. This is what the model small means. If model there is model tiny, that means we have only one segment and you have to do everything here, right? But if the model is large or medium or something like that, then we have multiple data segments, multiple code segments, and we can have 2 code segments, right? We can have 2 data segments like that. So this is what we have explained earlier also. Now, then comes the data segment. This is the data segment. That means this is in the memory where there is a code segment. And now we have the data segment, for example. In data segment, we are having some 5 arrays. But 5 arrays, array 1, array 2, array 3, they're all here in this data segment. Okay. So if I want to access a particular array, then I need first what is the address of data segment, the base address of data segment. For example, if you want to come to my house, you need to know first what is my colony name, my sector name. Say, for example, my sector name is Shah Faisal colony. So you will come first to the Shah Faisal colony. And then you will say house number 1, 2, up to my house number is 44. So this house number 44 is in Shah Faisal colony. This is also in the Firdos colony, house number 44. This is also in the other colony, house number 44, right? There are tons of houses whose house number is 44. But this saying my house number is 44 is make no sense unless and until you don't have a base address of Shah Faisal colony. That I live in Shah Faisal colony, right? And in Shah Faisal colony, there is house number 44. Otherwise, there is other colonies, all other colonies, they have also house number 44. So saying 44 will not get you my address. You need the first, the base address. That is the Shah Faisal colony. Similarly, in this segment, there is an 1, 2, 3, 4, 5, 6, wherever my array is, that address is called offset. This 44 is called offset. So now you also have the offset in the data segment, but you need to first understand where the data segment is, because there is also the code segment. In that code segment, there is also this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 offsets where there is some code. But to locate that code, you first need where in the memory is the code segment, the base address, because your memory is bigger and it has a lot of things in it. Okay. Your memory is bigger. It's like this. Your memory is huge. There are other programs here, and this is here. Your segments. Say data code segment is here, data segment is here. You need to first understand where in a memory is your code segment. Where in your memory is the data segment? That's the base address, right? The code segment का जो base address है वो operating system direct डालता है, जो हमारी registers है in our बस इंटरफेस यूनिट। हमने कहा था वहाँ पे कोड सेगमेंट रजिस्टर है, वहाँ डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, वहाँ एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है, और वहाँ आपका स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है। इस कोड सेगमेंट रजिस्टर में एड्रेस डला हुआ है इस कोड सेगमेंट का, लेकिन डेटा सेगमेंट का एड्रेस किसको डालने की जिम्मेदारी है? हमें, है ना? वो जो हम पहला काम अपने बॉयलर प्लेट में करते हैं, ये वाला काम। What are we doing this thing? We are saying to put into the DS, that is this data segment register,
put into it what we want to put into it? Data segment का address, this address. So whatever is this address here of the data segment which I am making in the green for example, ये address आपके data segment register में जाता है. But the segment register can't access directly your memory, therefore you use the accumulator AX register. We have seen the microprocessor architecture and registers and all. In AX we first put this data address into AX. From the AX we put it into the DS. यानी कि कुल मिला के जो है मेरा जो डेटा सेगमेंट कहां पर है वो एड्रेस मुझे डेटा सेगमेंट रजिस्टर में आ चुका है. यानी कि अब अगर मुझे कभी क्या करना होगा कि मुझे अब डेटा सेगमेंट, मानो ये डेटा सेगमेंट है और इस डेटा सेगमेंट में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये एरेज हैं, एरे 1 है, एरे 2 है, एरे 3 है, एरे 4, मुझे एरे 3 प्रिंट करनी है. अब मुझे सिर्फ इसका ऑफसेट चाहिए, है ना, क्योंकि जो बेस एड्रेस है वो ऑलरेडी आपके डेटा सेगमेंट जो रजिस्टर है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है उसमें ऑलरेडी ये एड्रेस है, वो आ चुका है बिकॉज ऑफ दिस कोड. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस पीस ऑफ कोड आपको डेटा सेगमेंट के अंदर वो एड्रेस आ चुका है. नाउ एनी टाइम यू वांट टू एक्सेस एनी वेरिएबल और एनी मैसेज और एनी एरे in the data segment, now you need the offset. Now you need what? Offset of the array. अब चूंकि ये तो array है, अब मसला है कि ये तो arrays है, जो मानो ये डेटा सेगमेंट आप है, ये आपका डेटा सेगमेंट है मेमोरी का और उसमें आपकी arrays बैठी हुई है ना. अब ये जो array है ये तो ब्लॉक ऑफ, इसमें तो ऐसे ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगा जिसमें ये चीजें होंगी और हर एक का डीबी साइज है, हर एक का एक एक बाइट साइज है. और जो ये पहला ब्लॉक है कि इस, यानी कि ये जो डेटा सेगमेंट आपका है, फॉर एग्जांपल ये डेटा सेगमेंट है और ये एरे 1 यहाँ पे है जिसमें 1 2 3 4 5 है, और जो ये AR2 जो इसको AR1 जो है जो इसको पॉइंट करती है उसको असल में ऑफसेट है इस 1 का, जो मैं ऑफसेट बता रहा था ना, हाउस 44 लाइक दैट आई सेड, जो ऑफसेट है वो इस 1 का है, इसके पास वो AR के पास है. हम दो तरीके से अब एक्सेस कर सकते हैं, या मैं इस AR को एक्सेस करूंगा यूजिंग द AR, आई से AR ऑफ 0, दैट इज दिस गाय. नाउ दिस गाय विल बी AR ऑफ 1. व्हाई आई एम सेइंग AR ऑफ 1? फर्स्ट बेस एड्रेस ऑफसेट ऑफ AR. हालांकि वो कैलकुलेट खुद होगा कि डेटा सेगमेंट पहले होगा, डेटा सेगमेंट कहां पे है, वहां पे AR2 है, AR है, AR1 है. AR ऑफ 1 जो है वो देगा 2, AR ऑफ 2 देगा हमारे पास ये, AR ऑफ 3 देगा ये, AR ऑफ 4 देगा ये, है ना. we can access the array like that. या दूसरा तरीका है कि मुझे SI एक सोर्स इंडेक्स जो रजिस्टर है उसमें मैं डायरेक्ट एड्रेस डालूंगा इस ऑफसेट का जो 1 है, कैलकुलेट करके कि क्या बेस एड्रेस क्या है डेटा सेगमेंट का और उसमें ऑफसेट कितना है, वो पूरा करके वो एड्रेस में SI में डालूंगा. कैसे? मैं कहूंगा जैसे मैंने यहां पे कहा कि आप करो SI के अंदर डालो ऑफसेट ऑफ AR1. यानी कि जब मैं ऑफसेट की बात कहता हूं मैं कहता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आप कैलकुलेट करो एड्रेस, क्योंकि ये ऑफसेट है, जो AR1 है ये ऑफसेट है. ऑफसेट का मतलब ये है कि ये कहीं पर डेटा सेगमेंट के अंदर है, पहले डेटा सेगमेंट के पास जाओ फिर उसको प्लस से ऑफसेट करो, है ना. जैसे कि मैं फिर से एक बार समझाता हूं, मैंने बहुत बार आपको समझाया कि अगर डेटा सेगमेंट शुरू यहाँ पे है, मान तो ये गो ज़हतस पे शुरू, पत ज़हत अख, ज़हत ज, ज़हत 3, ज़हत 4, ज़हत 5 पे, ठीक है. ऑफसेट छ 5 मगर यह मा 5 पे, यह असली ज़हत 5 पे, क्या अत गो ऑफसेट ये अत असली बेस एड्रेस गो ज़हत, पे फॉर एग्जाम्पल 3 हथ ये बेस एड्रेस, पे गो 1 2 3 यह 5 पे, मगर यह 5 ऑफसेट यह 5 ऑफसेट, मगर यह असली 305, यह असली 205. यह कित पे नेर ये बेस एड्रेस करो एड 5 ना, इत पे यह 305 कित नेर, या 300 करो 5 एड. डू यू अंडरस्टैंड? डज मेक सेंस? तो इसी तरीके Yes, से sir. जब मैं कहता हूं कि भाई साहब ये ऑफसेट है, AR1 जो है ये ऑफसेट है, उसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखेगा डेटा सेगमेंट कहां पर है आपका. ठीक है, जो डेटा सेगमेंट, जो आपका डेटा सेगमेंट का एड्रेस होगा, मानो ये डेटा सेगमेंट है, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल है 22426 फॉर एग्जांपल, और ये ऑफसेट आपका AR1 का 5 पर है, एरे आपकी 5 पे है, ये 1 2 3 4 5 ये ना, ये वाली एरे. ठीक है, अब 5 जो है वो असली एड्रेस नहीं है, असली एड्रेस पहले ये
उसको प्लस करना है ये एड्रेस 5, तो ऑफसेट वो खुद करके देगा। यानी कि कुल मिला के इसका जो टोटल एक्चुअल एड्रेस है, यानी कि ऑफ बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट करके वो एसआई में जा रहा है। किसमें जा रहा है? अब आपको ये ए आर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एसआई को कह सकते हो, जो एसआई में एड्रेस है। लेकिन मैं बोलूंगा अब उसमें जो कंटेंट्स हैं, इस एड्रेस के अंदर जो एड्रेस एसआई पॉइंट करता है इस एड्रेस को, अब इसमें कौन सा कंटेंट है? 1, क्योंकि मुझे एड्रेस प्रिंट नहीं करना है, मुझे 1 प्रिंट करना है। जैसे आपने निकाला मेरा शाह फैसल कॉलोनी जो था वो स्टार्ट होती है 500 पे, और मेरा एड्रेस है हाउस का 44, सो टोटल हो गया 544 मेरा एड्रेस। लेकिन 544 जुनैद सर नहीं है, मेरा एड्रेस है। हु इज इनसाइड? जुनैद सर। सो जो एड्रेस है आपको, जो भी एड्रेस आपको है, उसको आपको निकालना है कि उस एड्रेस के ऊपर क्या है बंदा उधर, वो ब्रैकेट से निकलेगा। ठीक है, सो ब्रैकेट से हम क्या बोलते हैं? जो ऐसे पॉइंट करता है जिस एड्रेस को, उस एड्रेस के अंदर वैल्यू क्या है। तो दिस इज वैल्यू। नाउ दिस इज व्हाट? खाली ऐसा इज व्हाट? खाली ऐसा इज द एड्रेस। ठीक है, व्हाट इज AR1? AR1 is the offset. AR1 is what? Offset of this address of this one. In fact, AR1 is also the AR1 is actually the offset, right? Which is pointing to this one in the memory. Does it make sense now, what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. Now, what we had done here is we created some 5 arrays yesterday. One way is create what? The numbers. Other is I put up the letters here, but you see letters I put up in the quotes, single quotes. Whenever you put something in a single quotes, it is an ASCII. It is what? Remember that it's an ASCII. It's not E. Yes. It will be the ASCII of E, which will be stored. It will not be A. It will be the ASCII of A, which is stored. Do you understand? So now, if this is the ASCII of A, ASCII of B, ASCII of C, ASCII of D, ASCII of E, and I told you if you have a keyboard and you want to get something from the keyboard, it is in the form of ASCII. Okay? And if you put something on a monitor, you have to give him in ASCII. Otherwise, आपका कुछ और ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना? बस में आती है। जो मैंने कल आपको ASCII का चार्ट दिखाया था, पॉइंटर, जो मैंने कल आपको ASCII का चार्ट दिखाया था, ASCII 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 टेबल। अरे यार, 1 सेकेंड। ये देखिए, आपका ASCII लेटर जो आपका है, जो सिंबल A है यहाँ पे, कैपिटल A, उसका 65 डेसिमल है या 41 हेक्साडेसिमल है। यानी कि अगर आपने ASCII में लिखा, अगर आपने उसमें कोड्स लिखते हो, अगर आप डायरेक्ट A लिखते हो ना, वो आपको 65 देगा, वो आपको A नहीं देगा। यानी कि क्योंकि अगर आपने A लिखा, वो सिंबल है। लेकिन अगर आपको ASCII, आपने ASCII कहा, तो उसका मतलब है कि इट इज एज गुड एज राइटिंग 65 देयर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 65 लिखूंगा, कहाँ पे, या स्मॉल a अगर मेरे पास है, इट विल बी 97, इट विल बी 90, b इज 98। ये ASCII का कोडिंग है। ठीक है ना? यानी कि अगर आप यहाँ पे a के बदले लिखोगे 97, ठीक है ना? अगर a के बदले क्या लिखोगे आप? 97. 97 किसका है? ये देखो 97 स्मॉल। Small. 65 किसका है? Capital. ठीक है ना? कैपिटल A 65। यानी कि अगर आप यहाँ लिखोगे 65, इसमें यहाँ पे लिखोगे आप 97 के बदले 60, क्योंकि कैपिटल है ना ये, 65, इट इज एज गुड एज A। यू राइट 65 और यू राइट इन कोट्स, सिंगल कोट्स, Single quotes. कैपिटल A। दैट्स वन एंड द सेम थिंग, because in single quotes it will not see the A, it will see the ASCII value of it, that is 65. Now, but these are not ASCII values, these are normal values, 1 2 3 4 5. We want to convert them into ASCII values, because I told you that you have to give it to the monitor. When you give it to the monitor, you cannot give it in the form of 1. If you want to print 1 on the monitor,
then you have to give what is the ASCII of 1. ASCII of 1 is 30H, okay, or 48 decimal, as I have shown you yesterday also. Pointer, please. If I see, you see the 1, here is the 1. Okay, here is 0. 0 is 48. 0 is what? Or 30. 1 is 49 ASCII. So you have to give to monitor 48. It will print you 0. Or you have to give to monitor 30. It will give you 0. H, hexadecimal. You have to give 31 to the monitor. It will print you 1. ठीक है, ये ASCII वैल्यूज है बस, और कुछ नहीं है इसमें, खास नहीं है कुछ। यानी कि हमने ASCII वैल्यू शुरू की है यहाँ से 0 से। 0 का मतलब नल है, 1 का मतलब ये है, और इस बेल है यहाँ से CRF। अगर आप देखोगे 32, देखो 32, अगर आप देखोगे व्हाट इज 32? 32 का मतलब है स्पेस, यानी कि अगर आपको स्पेस डालनी है, वो मॉनिटर पे दिखना है ना, मॉनिटर पे स्पेस दिखानी है, ठीक है, मैं स्पेस डालना चाहता हूँ नंबर्स के बीच में, आपको 32 ASCII, उसका मतलब है स्पेस, ठीक है। यानी कि हर एक चीज का हमने, हर एक कैरेक्टर का, हर एक काम का हमने ASCII वैल्यू दिया है, ठीक है। जैसे आपको बेल करनी है, आपको जो भी काम करना है उसका ASCII वैल्यू है, या आपके पास कैरेक्टर्स हैं, या आपके पास स्पेशल सिंबल्स हैं, उनका एक वैल्यू रहता है 36, जैसे $साइन का है, ठीक है। तो अगर आपको $साइन प्रिंट करना है, ये मॉनिटर के लिए है, कीबोर्ड है मॉनिटर के लिए, अगर आपको प्रिंट करना है $साइन, तो आपको 36 इसको भेजना है, और मॉनिटर कन्वर्ट करेगा इसको इनटू द डॉलर। बात समझ में आ गई। तो अगर मुझे अब प्रिंट करना है फॉर एग्जाम्पल 1, तो असल में ये 31 होगा ना, मुझे भेजना क्या है 31 इन हेक्साडेसिमल, और 49। जब मैं 49 भेजूंगा तो वो 1 प्रिंट करेगा, अगर मैं 50 भेजूंगा तो वो 2 प्रिंट करेगा। तो अगर मैं 2 भेजूंगा, क्या 2, यानी कि मैं भेज रहा हूं 2, वो STX प्रिंट करेगा। अगर मैं भेजूंगा 0, वो नल प्रिंट करेगा, ठीक है। सो आई हैव टू सेंड वैल्यू 48, then it can print 0, or 30H. I have to send 49. So therefore, इसलिए मुझे यहां पे इस चीज को पहले भेजने से पहले मुझे क्या करना चाहिए, इसको I have to add this 1। अगर यहाँ पे 1 है, कमांड Z, कहाँ गया पेन, हाँ, अगर यहाँ पे 1 है, I don't have to send it 1, I have to add it with the 30H, so that means 31H। when I send 31H to monitor, it will print me what, 1, simple। so 2, इसको 30H प्रिंट करो, यानी कि ऐड करो, दैट इज 32, यू हैव टू सेंड टू मॉनिटर 32, इट विल प्रिंट 2। 3, इसको भी 30H, जो 33, 4 को ऐड करेंगे 30H, यानी कि हर एक को 30H ही ऐड करना है, जो 0 का वैल्यू था। तो 30H जब ऐड करेंगे इनको, तो वो एग्जैक्ट नंबर प्रिंट करेगा। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ASCII फॉर्म में है ना, दिस आर ऑलरेडी इन ASCII फॉर्म, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने और एक किया कि मैंने 4 4 4 4 के 5 एरे बनाई ऑफ ऑल द 4s इन इट। फिर मैंने कहा कि इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं, कि जितनी बार आपको करना है, जैसे 5 बार करना है तो 5 लिखो यहाँ पे, और फिर डुप लिखो और इसमें वैल्यू लिखो। अगर मुझे बताओ, अगर मुझे 10 बार एरे में 6 6 6 6 6 10 बार लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, से फॉर एग्जाम्पल एयर 7, हाँ DB, कितनी बार लिखना है, 10 बार, मैं लिखूंगा 10, फिर क्या लिखूंगा मैं, डुप्लीकेट व्हाट, 6। एक और तरीका हो गया, ठीक हो गया। और ये मैसेज थी कोई, हम सिर्फ दिखा रहे थे कि मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं, तो कुछ है नहीं हमारे पास। ओके, डिलीट ऑल। नाउ इन द कोड सेगमेंट, वी से द मेन प्रॉक, ठीक है ना, वी हैव व्हाट, मेन प्रोसीजर, okay, this is the main procedure, and then in the main procedure we first do what, we do the boilerplate, what is it doing, initializing the data segment। मैं बोल चुका हूँ 1000 बार, अब एम्पत बस ना चू अब अगर ना एम्पत लगे को तूफानी थी। अब मुझे कोई भी एरे है, इसमें मैंने 5 की चीजें रखी हैं, जैसे 1 2 3 4 5, so therefore I need to use a loop, है ना, लूप्स हमने परसों ही पढ़े, तो हमें लूप इसमें इस्तेमाल करनी है ताकि मैं इसको एक्सेस करूं। तो इसलिए मैं CX में पहले क्या डाल रहा हूं, 5,
दैट मीन्स काउंटर में मैं 5 डाल रहा हूं ताकि मुझे 5 बार, क्योंकि मुझे 5 बार करना है, क्योंकि लूप जो ये लूप स्टेटमेंट है दिस ऑलवेज वर्क्स विद व्हाट CX। ये देखता है कि CX रजिस्टर में क्या है। अगर अगर CX रजिस्टर में 0 है तो ये लूप से बाहर आएगा। अगर CX रजिस्टर में 0 नहीं है तो जो लेबल आपने बताई है ये वहां पे जंप वापस मारेगा। सो चूंकि पहले CX में 5 है तो जब यहाँ पे आएगा ये दिखेगा लूप में क्या है भाई, CX में क्या है 5, गो बैक हियर। लेकिन साथ में जब ये वहां यहाँ जाएगा ये CX को डिक्रीमेंट करेगा। CX क्या करेगा, यानी कि CX में अगर 5 था अब 4 ही बनेगा। फिर करेगा ये कोड, ये सारा कोड। अब CX में क्या है 4, ये फिर वापस जाएगा यहाँ पे और बनाएगा CX को 3, फिर ये सारा कोड करेगा। ठीक है, अब CX को क्या बनाएगा ये 2, 2 फिर जाएगा ऊपर जब तक CX 0 नहीं होता, फिर से ये कोड करेगा। अब CX को बनाएगा 1, फिर लूप जाएगा ऊपर हेयर के पास और फिर ये कोड करेगा जो भी ये कोड है, फिर CX बनेगा 0। अब CX क्या है 0, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब ये नीचे जाएगा। दैट मीन्स लूप विल एंड। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए मैंने 6 में 5 डाला। लेकिन प्रिंट मुझे क्या करना है, प्रिंट मुझे करना है जो एरे है। मैंने उसको कहा उसके 2 तरीके मुझे मेरे पास हैं उस एरे को। या तो मैं SI में पहले डालूंगा, मैंने SI में डाला एड्रेस सारा AR1 का ऑफसेट निकाल के कि भाई AR1 का क्या एड्रेस है, डेटा सेगमेंट में जो AR1 जिसको पॉइंट कर रही है उसका क्या एड्रेस है, यानी कि SI इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट ब्लॉक जिसमें 1 है, 2 3 4 एंड 5 ऑफ एरे। ठीक है ना, तो SI में डायरेक्ट एड्रेस है। अब अगर मुझे ये 1 निकालना है आई हैव टू से कंटेंट ऑफ SI, दैट इज इट, राइट। अब प्रिंट एक डिजिट, अगर एक डिजिट मुझे प्रिंट करना है सो उसके लिए मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स जो कि हमें प्रिंट करने में लगती है ना। एक मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो AH में क्या होना चाहिए 0 9 है। 9H और लेकिन उस Knowledge. स्ट्रिंग प्रिंट आपको करनी है उसका ऑफसेट किस में होना चाहिए DX रजिस्टर, एंड देन यू विल DX. कॉल द इंटरप्ट 21H। अच्छा, अगर एक नंबर प्रिंट करना है तो AH में क्या होना चाहिए, 0 to 02H H. मगर ये किसके साथ काम करता है, DL के साथ. DL नंबर होना चाहिए DL रजिस्टर में, वो फिर प्रिंट Yes. होगा। एंड दैट शुड बी इन DL इन द फॉर्म ऑफ ASCII, है ना, वो ASCII फॉर्म में होना चाहिए, वरना वो पता नहीं क्या देगा। यानी कि ASCII फॉर्म में होगा तो, क्योंकि मॉनिटर को जब हम भेज रहे हैं कोई चीज उसको ASCII फॉर्म में भेजो, तो DL में ASCII फॉर्म में नंबर होना चाहिए, AH में 0 to H होना चाहिए, एंड देन यू कॉल इंटरप्ट 21H, द DOS विल कम एंड प्रिंट दैट नंबर विच इज इन DL। अगर आपको स्कैन करना है तो AH में क्या कोड होना चाहिए 01H 01H टू स्कैन 1 नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड, है ना। तो लेकिन ये किस में Yes. काम करता है, जो नंबर लाएगा ये कीबोर्ड से वो किस में जाएगा AL. AL AL में, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, S. वो भी ASCII फॉर्म में होगा, वो ASCII फॉर्म में होगा। उसमें उसमें आपको 30H माइनस करने पड़ेंगे ताकि अगर उसके ऊपर क्योंकि वो 1 नहीं, आपने लिखा है यहाँ पे 1, आपने लिखा A फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैपिटल A आपने दबाया कीबोर्ड से, लेकिन वो जाएगा AL में 65 उसका ASCII। ठीक है, आपने दबाया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, लेकिन वो 39 जाएगा किस में AL में, क्योंकि उसका ASCII जाएगा। फिर अगर आपको उसके ऊपर मैथ करना है देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट 30H, ASCII से वापस डेसिमल लाना है। जिस तरह यहाँ पे हमारा डेसिमल है तो हम कहते हैं कि भाई ये मेरा डेसिमल है, ये जो मेरा डेसिमल है इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे 30H ऐड करने पड़ेंगे या 48 डेसिमल ऐड करना पड़ेगा ताकि वो ASCII बने। किस लिए कर रहा हूं मैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग, टू मेक व्हाटएवर इज इन DL ASCII। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया काम, इसलिए हमने एज में पहले 0 to H डाला, क्यों, क्योंकि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सो प्रिंट जो मैं करना चाहता हूँ वो कहाँ किस में होना चाहिए DL में। तो मैंने यहाँ पे हेयर लगाया लेबल ताकि, और ये लूप है यहाँ पे ताकि ये आपस में लूप चलाए। वी हैव ओनली 10 minutes लेफ्ट सो वी विल बी हरी लिटिल बिट नाउ। अब मैंने क्या किया काम, पहले जो SI है SI इज पॉइंटिंग एग्जैक्टली टू माई एरे, राइट, है ना। सो कंटेंट ऑफ SI विल गिव यू द Yes sir. 1, that 1 will go into DL, लेकिन 1 is not in ASCII form, I have to convert into ASCII form, therefore I add this DL with 30H or 48 decimal or 30H hexadecimal so that it becomes ASCII. now अब मेरे जो DL में होगा वो होगा 31H होगा ना,
या डेसिमल में होगा वो 49, क्योंकि Yes. मैंने इसको 30h ऐड किया ना, डेसिमल में 49 होगा, 31h होगा इसमें, एंड दिस थिंग एक्चुअली मीन्स इन ASCII 1. So when I send it to the monitor will not print it as 31 or 49, it will print it as 1. ठीक है, फिर इंटरप्ट 21 को कॉल किया, उसने किया वो. अब मुझे आगे जाना ना इसके पास, सो SI शुड इंक्रीमेंट टू दिस नाउ. SI भी 1 के पास था, अब जाना चाहिए दूसरे नंबर के पास. So I Yes, sir. SI, I'm incrementing SI, Okay. SI will go to the second number. ठीक है ना. उसके बाद मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैंने अभी लगाया जब तक आप ये कर रहे थे. मैंने DL में 32, ये कल हमने नहीं किया था, मैंने अभी किया. मैंने DL में 32 लगाया, जो मैंने अभी दिखाया स्पेस. मैंने DL में 30 और फिर इंटरप्ट 21, क्योंकि ऑलरेडी एच में 02H है ना. व्हेन आई कॉल इंटरप्ट 21, इट विल सी कि एच में क्या है, वो 02H ही है. और 32 मीन्स स्पेस. 32 मीन्स व्हाट, ये स्पेस डालेगा. इफ आई रन इट, जैसे कल हमने रन किया था, लेकिन फिर मैं एक्सप्लेनिंग के चक्कर में जो हम फिर देख नहीं पाए इसको. सो इफ आई रन इट, run ASM code, now it is printing me 1 space 2 space 3 space 4 space 5. So अगर मैं इसमें ये करूं कि आप मुझे AR1 नहीं, मुझे ये चाहिए AR2, मुझे AR2 चाहिए. ठीक है, and I run the ASM code. Now if you see, it is printing QRSTU, not the ABCD. Why? क्योंकि मैंने इसको ऐड किया, मुझे ऐड नहीं करना चाहिए. कमेंट इट आउट. Why? क्योंकि वो ऑलरेडी ASCII फॉर्म में है, ये ऑलरेडी ASCII में ही है, मुझे इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है. नहीं. जो DL में है उसी को प्रिंट करो. नाउ इफ आई प्रिंट इट, रन ASM कोड, नाउ यू विल सी इट इज प्रिंटिंग ABCDE. अगर मैंने यहां पे लिखा होता 65 डायरेक्ट, ठीक है, एंड आई से Yes, sir. रन ASM कोड, इट इज स्टिल वर्किंग फाइन. फिर भी ए ही दिखा रहा है ना. क्यों? क्योंकि Yes, sir. 65 मीन्स A. Yeah. आप ऐसे लिखो या सिंगल कोड 65, 66, 67, 68, 69, 5 गया, आग 3 4 5. If I write it like Yes, yes. this, I'm writing the ASCIIs of run ASM code. It will still not have a problem. It is still printing the same properly. A, B, C, D, E. है ना? बात में आ रही है? Yes, sir. It's still printing properly. यानी कि चाहे अगर आप इस वक्त सर ASCII लिख रहे हो या आप कोट्स में लिख रहे हो. अगर AR1 प्रिंट कर मैं इसमें T लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कोट्स में. है जी, इस वक्त अगर आप AR1 प्रिंट करेंगे उसका भी फिर अगर हम AR1 अल्फाबेट प्रिंट करेंगे, मतलब फॉर DL एग्जाम्पल को ऐड नहीं ऐसे ही सर. अगर हम DL को ऐड नहीं करेंगे, सुकरना उसको ना वन कोड कुसु ये ना सुकाज करिए प्रिंट सो ना वन से ASCII रन. वायलेंस को कौन सा है. हाँ, अगर मैं इसको ये करूंगा तो सुधी ना सुहाय हम तारक तज. देखो इसने क्या दिखाया, ये है ना उनके, Yes, sir. यानी जमाशी 1 तो असली No, तो sir. असली 48 तो 49 डेसिमल. हाँ, तो शी Yes, sir. 49, 1 मतलब को 49, 2 मतलब को 15 ASCII को ना असना 3 ऐड करो पेशेंट की हैं. So मैं वही थी. 51 ये go 52 तो ठीक सब करना. You go Yes, 53. sir. Now if you print it, run ASM Now code. Now it is printing properly 1 2 3 4 5. क्योंकि 49 means 1. देखो प्रिंटर के लिए ASCII चाहिए. जो अब प्रिंटर को आप भेज रहे हो ना 49, आपने 49 भेजा, उसने 1 प्रिंट किया. आपने 50 भेजा, उसने 2 किया. बात समझ आ रही है? यू गेटिंग? Yes. या आप इसको कह सकते थे हेक्साडेसिमल में 31H, है ना. अगर आप 31H करो इस रन ASM को, इट इज स्टिल प्रिंटिंग द प्रॉपरली, है ना. चाहे आप हेक्साडेसिमल में Yes, sir. 31 लिखो, हेक्साडेसिमल या 49 इन, क्योंकि आपको क्या करना है काम, अब आपको जो भी है आपको कन्वर्ट करने के लिए 30 ऐड करना है बस, और कुछ नहीं है. 30H या 48 इन डेसिमल एंड 30 इन हेक्साडेसिमल, इसको ऐड करना है, वो ASCII उसका होगा. ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट ASCII ऐसे दोगे. अब हम ऐसे मत काम करेंगे, हम करेंगे काम अपने No, तरीके, जैसे हम करते हैं काम एज अ, जो हमें जो पता है, हम ऐसे काम करते हैं.
ठीक है ना। फिर हम कन्वर्शंस करेंगे, लेकिन हम काम करेंगे ऐसे अपने तरीके से कि ABC, वरना हमें कंफ्यूजन होगा ना कि अब कौन था वो। ठीक है, अब ये तो एस की फॉर्म में हो गया, या यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सीधे 1 2 3 4 5, है ना। फिर मैं कन्वर्ट करूंगा उनको, Yes. क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि है क्या, बिकॉज वी वर्क एक्चुअली वर्क इन डेसिमल, सो वी नो दीज थिंग्स, जो हमें जिसकी आदत हमें है, हमें पता है कि 1 2 3 4 5 है। मगर मॉनिटर के लिए ये 1 2 3 4 5 नहीं है। मॉनिटर के लिए क्या चाहिए, 1 के लिए 41 या 31H। आया समझ में, एस की चाहिए उसको। Yes. गेटिंग और नॉट गेटिंग। Yes, sir. Getting. Okay, this is quite simple. This is not rocket science. This is very simple. अच्छा जी, और दूसरा तरीका मैंने कहा था, लास्ट बात मैं यहाँ पे करूंगा कि अगर मैं SI में ऑफसेट नहीं डालता, मैं SI में 0 डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं SI के अंदर मैं डालूंगा मूव इनटू SI 0, मूव इनटू SI व्हाट Yes. 0। मैं SI में 0 डाल रहा हूं, सो क्या ये प्रिंट करेगा मुझे अभी कंटेंट ऑफ SI, क्योंकि मैंने ऑफसेट नहीं निकाला। सो डेफिनेटली इट वोंट, देयर इज एन एरर इन इट, क्योंकि आपको जो SI है, आपके SI में जैसे आपने कहा 44, वो 44 कौन होता है, पहले आपको देखना है ना कि किस कॉलोनी में रह रहा हूं मैं, तो आपको ऑफसेट निकालना पड़ेगा। बट इफ आई से हियर नाउ, हियर इफ आई से लाइक दिस, इफ आई से AR1 ऑफ SI, पहले इसी में गड़बड़ है, ये क्या लिखा मैं, S1 लिखा मैंने। मूव इनटू SI 0H फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं उसमें, ठीक है। हाँ, मगर इसमें अब ये कर रहा है, लेकिन इसमें ये ऐड करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमने दिया ना वापस, वैसे हमने यहाँ पे दिया ना नंबर एज ए नंबर्स, ठीक है। तो उसको एस के एडजस्ट Yes, sir. करना पड़ेगा। सो रन ASM कोड, नाउ इट इज वर्किंग फाइन, बिकॉज मैंने SI के अंदर अब 0 डाला। तो अब आप अपने, जैसे आप फॉर लूप लगाते थे C के अंदर और अपने I का वैल्यू 0 रखा, वो 0 तो कुछ होता नहीं है। तो आपको कहना है अब कि भाई साहब जो array1 है उसका 0, because array1 is also pointing to the is the offset is, हमें ऑफसेट कैलकुलेट करने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी ये है, देखो जो मेरी ये एरे है यहाँ पे, ये वाली जो एरे है, AR1 इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू दिस, ठीक है ना। AR1 जो मेरा है, इट इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू 1। पहले मैंने SI के अंदर ऑफसेट डाला था AR1 का, है ना। Yes, sir. तो SI was pointing to this guy, AR1 is already pointing to this guy, है ना। सो मुझे ऑफसेट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट AR1 को ही एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग चाहिए फिर। देन आई नीड इंडेक्स 0 1 2 3 4, क्योंकि जो मेरी एरे है, पहले का इंडेक्स 0 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है, फिर 3 है, और पांचवे का 4 है। एंड AR1 इज पॉइंटिंग टू दिस, सो AR1 ऑलरेडी इज हियर। आई नीड ओनली दिस 0 1 2 3, वो मैंने SI में डाला, SI में मैंने 0 डाला। सो दिस इज AR ऑफ SI, फर्स्ट टाइम मीन्स AR ऑफ 0, सो दैट इज दिस गाय, इट विल प्रिंट दिस। फिर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ SI को नीचे, इंक्रीमेंट SI, जब यहाँ पे कर रहा हूँ ना नीचे, इंक्रीमेंट SI यहाँ पे, इंक्रीमेंट SI, यानी कि इंक्रीमेंट SI क्या करेगा काम, वो इस SI को आगे बढ़ाएगा। अब SI में पहले 0 था, अब क्या बनेगा 1। नो AR ऑफ 1, सो दिस इज नो AR ऑफ SI का मतलब है AR ऑफ 1, क्योंकि SI है अब 1 है, तो दैट मीन्स दिस गाय, है ना। और लूप जो यहाँ